अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो का आगाज़ कर रहे हैं गांव की पंचायत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाऊ जी बस माफ़ी दे छड़ना, को मुश्किल पैंदी है फिर तुहाडे कोल ही उपड़ना पैंदा। जेन चाहुंदा कि चल के कोई शहरों कोई शायद इंसाफ ले लईए, पिंड च साडी सुनदा कोई नहीं जे। हुआ क्या है? होड़ा की है बाज जी, राणा साहब नूं ते नज़रां ही खा गईयां दुश्मनां दियां। इहो जी नज़र लगी जे कि सियापा ही नहीं मुकदे। किसकी नजर लग गई? बाज जी दुश्मनां दी लगड़ी है नज़र, सड़ते जी होए राणा साहब कोलों। अच्छा बाबू जी बिल्कुल सही आदा चाचा मेरा। हाँ। नजर ਜਿਹੜੀ नजर ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਭਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਨਾੜੂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਿਆਮਤ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਾ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਛੁਡਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ। अच्छा 2500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗਾ ਹੋਵੋ, ਖੋਲੋ ਪਿੰਜਰਾ ਆਪ ਹੱਥੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਣਾ ਏ। ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ। अच्छा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਯਾ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੜਦੇ ਜੀ ਹੋਏ। ਚਿੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। अच्छा तो आपने कोई नजर वगैरह उतारी, कोई सदका शदका दिया राणा साहब का? ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਡਾਢੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ 7 ਵਾਰਾਂ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੜੀ ਜੇ ਧਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਾਉ ਕੁਕੜੀ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਲਣ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲਣ ਦਾ। ਖਾ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁੰਮ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਲੱਸੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਲੱਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੁੱਕੜ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਥੱਕਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ 500 ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਗਦ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਦਕਾ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਲ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 500 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੱਸਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਖਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਵੇਖੀ ਨੇ ਫਿਲਮ, ਡਰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਸ਼ਣ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੁਆਦ ਖਾਨ? ਆ ਵਾਲਖਾ ਮੌਲੂ ਜੱਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਲੱਗਦਾ। वैसे मैं हैरान हूं कि आपके गांव में सिर्फ एक ही मसला रह गया है और वो है राणा साहब। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ। ਵਾਹ ਦਰਦ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਤਾਵਲਾ ਦੀ ਕੇਸੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਲਾਖਾਂ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਮਨੂਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆ? ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਓਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੇਸ਼ੜ ਤੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੋਣ ਡਏ ਨੇ अच्छा ठीक है। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬੋਰੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਛੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈ, ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਣਾ। सही। सही ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਤੀ। ਔਰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਥੋੜੀ ਚੁਕਾਈ ਏ, ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਟ, ਐਵੇਂ ਓਏ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਗਿਆ। ਭਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਗਈ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਏ। ओ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। हाय ਉਹ 5000 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਰੀ ਲੰਘੇ ਤੇ 5000 ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 5000 ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ 72 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸਖਰ ਰੋੜੀ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਖਸੀਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਖਰ ਰੋੜੀ ਕਿਧਰ ਆ। ਰੋਂਦਾ ਸ਼ੋਖੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਯਾਦ ਜੇ ਅਸਕਰ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਸਤੀ ਮਿਲਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। अच्छा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਆਂਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰੈਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। लेकिन अब बात का रुख तब्दील ना करें, मसला तो पैदा हो गया है। वो मट्टी बेची है राणा साहब ने 5000 रुपए के एवज, वो ट्राली वाला खुद कह रहा है। ਉਹ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਤਾਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੰਨਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੂਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਖੂਏ ਜੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਫ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਲਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਹਾਰਲੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, गांव के बहुत बड़े मसाइल हैं, यानी कि वहाँ मिट्टी चोरी कर ली जाती है, पानी चोरी कर लिया जाता है, अच्छा। हत्ता के नहरों की भल चोरी कर ली जाती है। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਦਰ ਟੀਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਆ ਮੁੰਡਿਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੀਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਚ ਬੜਾ ਬਾਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਸੱਚੀ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ 5000 ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। लेना ही नहीं चाहिए था वो 5000 रुपए। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਰਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਏਗੀ? 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਥਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ 6 ਇੰਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਨਾ ਮਰਾਦੋ ਤੁਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਚੁਕਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5000 5000 5000। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ, अच्छा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖੁੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। अच्छा, ਖੁੱਸਾ ਹਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਅੱਡੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने मेरी टक्कर पे 3 लॉ छोड़ दिए मार्केट में। सर, वो कौन से? मदर इन लॉ, मार्शल लॉ, जो तेरे को है मिनू लॉ। अच्छा जी, हर साल 14 अगस्त को रियासती अवार्ड्स का ऐलान किया जाता है जी। मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले लोग हैं उनका ऐलान किया जाता है, और फिर ये अवार्ड, ये रियासती अवार्ड जो हैं 23 मार्च को दिए जाते हैं। हाँ जी। इस बार भी 14 अगस्त को मुख्तलिफ शोबों में जिन लोगों ने कारकर्दगी या नुमाया कारकर्दगी दिखाई उसका ऐलान हुआ, मगर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट ऐसी आई जो कि तकलीफदेह थी। इस हवाले से क्योंकि उसमें यह बात डिस्कस हो रही थी कि अवार्ड्स तो दिए गए, लेकिन कोई एक भी अवार्ड ऐसा नहीं था जो साइंस के शोबे से हो, जो किसी इजाद के हवाले से हो, जो किसी रिसर्च या तहकीक के हवाले से हो, या कोई तिब के शोबे में किसी ऐसी बीमारी के इलाज के हवाले से हो जो पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित हो। बात तो सही है सर। अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि अवार्ड्स मिलते हैं, जिंदा वो नहीं रहते जिन्हें सिर्फ अवार्ड्स मिलते हैं, बल्कि दिलों में जिंदा वो लोग रह जाते हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए कोई काम किया हुआ, बिल्कुल सही। कोई ईजाद की हुई हाँ हो, जी। कोई तहकीक की हुई हो। और हमारा अलमिया ये है कि हम कोई ईजाद हमने नहीं की, हमने किसी तरह की कोई तहकीक नहीं की, बल्कि दूसरों की ईजाद करदा जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सर जी, आप इन सब साइंटिस्टों में सबसे ऊपर किसका नाम लिखते हैं? यार जुल्फी, इन साइंटिस्ट में जो बाबा साइंस जिनको हम कहते हैं उनमें तो नाम आता है सर आइजक न्यूटन का। लो, मुझे तो लगता है कि न्यूटन साहब ही आ गए हैं। सर आइजक न्यूटन। यस, सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे आपसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई। यू आर ऑल पाकिस्तानी। ओए, आप लोगों ने मेरा मुकाबला शुरू कर दिया। हैं? मैंने साइंस में 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने मेरी टक्कर पे 3 लॉ छोड़ दिए मार्केट में। सर, वो कौन से?
मदर इल्ला मार्शल्ला जो तेरे को है मिनू ला। बहुत हंसता हूं मैं आप लोगों को देख देख के। आप वो कौम हैं जिन्होंने कभी तीला पन के दूरा नहीं किया। सारा दिन हम लोगों को ही देखते रहते हैं कि कुछ बनाएं, कुछ इजाद करें, कुछ रिसर्च करें, फिर हमें फायदा हो। वो आप ही की कौम के किसी बंदे की बात मशहूर है ना, वो बेरी के नीचे लेटा हुआ था। अच्छा। बेर पक के ऊपर से गिरा उसके सीने पे। अच्छा। अब वो बेर को देख देख के यही सोच रहा था कि कोई आएगा, बेर उठाएगा, मेरे मुंह में डालेगा। आप यहां से बेर उठा के यहां नहीं डाल सकते। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक आप हैं कि इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से सेब गिरा और आप इस सोचो विचार में पड़ गए कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों आया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, और उस पर कवानीन बना दिए आपने जो पूरी दुनिया के लिए, फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में उन्होंने हलचल मचा दी। इसलिए कि मैं एक सोच विचार वाली कौम का फर्द था। अगर आप जैसी कौम का फर्द होता तो सेब खाता, आराम से खराटे मारता, नींद पूरी करता। मगर मैंने ये सोचना शुरू किया कि सेब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर से टूटा है तो ऊपर कोई क्यों नहीं निकल गया। ये नीचे क्यों आया है, इसकी तो मेरी दोस्ती नहीं है। ना ही मैंने इसे बुलाया, आजा 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 आजा। ये क्यों नीचे आया है? ओ माय गॉड सर, मेरे ज़हन में तो एक ही बात फंसी है तब से कि जो सेब आपके ऊपर गिरा था, जिसके साथ आपने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी, वो सेब काला कोलू था या गोल्डन था? क्या जी, ये बच्चा अगर उस दरख्त के नीचे सोया होता और इसके ऊपर सेब गिरता तो इसने ये नहीं था सोचना कि सेब नीचे क्यों आया है, इसने खुद दरख्त पे चढ़ जाना। उस दरख्त से पूछना था कि बाकी पर आगे थे नहीं। सर यही सेब अगर गोगे के ऊपर गिरता इसने उठना नहीं था, इसने लेटे लेटे ने दरख्त लाना शुरू कर देना था। और भाई यहाँ सेब बाद में गिरना था और चौकीदार ने डंडा लेके पहले आ जाना था। अगर जुल्फी के ऊपर सेब गिरता तो बेहोश। लाओ, उनके ऊपर सेब गिरे हैं, वो दरख्त लाना शुरू हो गए। कोई बेहोश हो रहा है, कोई चौकीदार को डंडा पकड़ा के बुला रहा है, और वही सेब मेरे करीब गिरा है तो मैंने हरकत के कवानीन दे दिए। सर ये जो आपके हरकत के कवानीन है, जी जी, इसमें साफ साफ हरकतें हैं या बीच में गंदी भी हैं? भाई मैं सैर करने के लिए इधर क्यों आया? हालांकि मैं सोच रहा था श्रीलंका निकल जाऊं। यानी मैं इनकी बातें सुन के मैं सोच रहा हूं कि शुक्र है मैं पाकिस्तान नहीं जम्मया। अगर मैं इधर पैदा हो जाता तो मैंने लॉ ऑफ मोशन की बजाय सारी जिंदगी लॉ ऑफ प्रमोशन के चक्कर में ही पड़े रहना था। यानी कैसी मजे की कौम है आप कि सारी जिंदगी कख नहीं किया, और ये कहते जा रहे हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जम्मे ही नहीं। यानी मैं ये सोचता हूं कि यार मैंने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया और पाकिस्तानियों ने मेरा जमना ही फेल कर दिया। सर मैं तो आपके कशिश शकल के आफाकी कानून का फैन हूं, जिसके मुताबिक जमीन हर चीज को अपनी जानिब यकसा रफ्तार से खींचती है। थैंक यू। वैसे फरीद साहब ये क्या कानून है कि जो चीज आप ऊपर से छोड़ेंगे वो जमीन की तरफ आएगी, कि जमीन में कशिश होती है, कि जिस चीज को भी आप छोड़ेंगे वो जाहिर सी बात है जमीन पर ही आएगी। अब सेब कोई मकनातीस तो नहीं है कि भी टूटेगा और वो वहीं चिपका रहेगा, वो सेब है, जाहिर सी बात उसने जमीन पे ही गिरना है। वैसे चाचिओ आ कानून ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਰ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ ਜਾਮਨੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। वैसे चाचा न्यूटन जी ये आपका कशिश शकल वाला कानून जो है ना पाकिस्तान में फेल है। यहाँ पे कई दफा डॉलर नीचे गिरा और अपने आप ऊपर चला जाता है।
ਵੈਸੇ ਨਿਊਟਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਮਾਰਦਾ ਗੇਂਦ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਂ ਜਾਂਦਾ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ। ये लोगों की बातें सुन के मैं हैरान हो रहा हूँ, आपका मुल्क चल रहा है। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सर बस ऐसे ही चल रहा है जैसे इनकी बातें चल रही हैं। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ओ भाई जी, मैंने यही तो बताया है कि हर चीज को छोड़े वो नीचे आती है। तेरा मुंडा भी थल्ले आंदा है, ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ। ਡਾਲਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ सेब भी थल्ले ही आंदा है। उससे पहले ये किसी को सोच में नहीं था कि ये नीचे क्यों आता है। उसी से तो मैंने अखज किया कि ये जो हर चीज नीचे को आती है, इसका मतलब है कि जमीन के अंदर एक कशिश है जिसे हम कशिश सिकल आई मीन ग्रेविटी, वो कशिश उसे खींचती है, इसलिए वो नीचे आता है। हाँ जी। इतनी सारी गल है, तुसी मेरे मगर पै गए हो। ਚਾਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, 6 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। लो जी भाई जी, ताड़ा अल्लाह हाफिज। यार कुछ खुदा का खौफ करो। तुम लोगों ने ना खुद कुछ करना है और अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका मजाक उड़ाना और उसको मानना भी नहीं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। उनको आराम से मिल जाता, बल्कि आपके प्रोग्राम से ही मिल जाता। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपनी नजर में मुझे रखा हुआ है। मैंने वजीर इतलात और नशरियात कहा है, वजीर कढ़ाई नान व सलाद नहीं कहा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक फवाद साहब। आप लोगों को भी बहुत बहुत सलाम जी मेरी तरफ से, और सबको मुबारकबाद भी मैं पेश करना चाहता हूँ। आप सबको बड़ी मुबारक हो कि इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसा हीरा वज़ीर आज़म दिया है, एक ऐसा सच्चा पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है कि ऐसा दूसरा कोई नज़र नहीं आता। अरे वाह। बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की बड़ी खुशनसीबी है कि एक ऐसे अच्छे इंसान के हाथ में मुल्क का इक़्तिदार चला जाए। खैरियत तो है, निगरां वज़ीर आज़म की तारीफ़ व तौसीफ़ में आप ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। नहीं, मैं चूँकि अनवार भाई को जानता हूँ, माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं, और ये जिक्र आपके प्रोग्राम में इसलिए कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम वो देखते हैं? जी फवाद साहब, बिल्कुल देखते हैं। बल्कि उनके निगरां वज़ीर आज़म बनने से 1 माह पहले ही अजीज़ी को दुबई एयरपोर्ट पर मिले और उन्होंने अजीज़ी को कहा कि मैं आपका ये प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। अरे वाह। तो बात ये है कि इस तरह के आदमी कहीं मिल जाएं, ये तो बड़ी खुशनसीबी होती है। मैं तो बल्कि उनको सलाम करने भी गया, बड़े प्यारे आदमी हैं। अच्छा। इतने अच्छे इंसान, इतने प्यारे, सारे रोजे रखते हैं वो। बल्कि मुझे याद है एक दफा तो मैं घर गया तो पता चला कि इत्काफ पे बैठे हुए, और कभी भी मैंने सुना है खड़े होकर पानी नहीं पीते, अच्छा बैठ के पानी पीते। फवाद साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरां वज़ीर आज़म है, 5 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं आए। नहीं, 5 साल के लिए ऐसा बंदा वजीर आज़म आ जाए तो मुल्क ठीक ना हो जाए। हाँ, अगर उनको टीम अच्छी बेहतर मिल जाती तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी उनके पास है ड्यूरेशन इस वक्त भी, वो इतनी मुद्दत में भी मुल्क का पांसा पलट सकते थे, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते थे। उनके 1-2 वजीर ऐसे हैं जो मुझे तो नहीं अच्छे लगे। वजीर इत्तलात और नशरियात उनके पास कोई और होना चाहिए था। वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी जो है वो उनको कोई अच्छा चुनना चाहिए था। बल्कि चुनना क्या, उनको आराम से मिल जाता, बल्कि आपके प्रोग्राम से ही मिल जाता। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपनी नजर में मुझे रखा हुआ है। मैंने वजीर इत्तलात और नशरियात कहा है, वजीर कढ़ाई नान व सलाद नहीं कहा। साइंस टेक्नोलॉजी में भी मैं फिट नहीं होता।
आप फिट होते हैं, साइंस व टेक्नोलॉजी आपकी जुबान पे फिट नहीं होती। हद हो गई है। तो बात हो रही थी अनवारुल हक काकड़ साहब की। तो फरीद भाई, मैं समझता हूं कि ऐसे पढ़े लिखे और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत से सरशार लोग जो हैं, वो अगर इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क तरक्की की राह पे क्यों नहीं गामजन होगा। और मैं इसमें भी कोई मजायका नहीं समझता कि निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो बढ़ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, भाई अगर आपको एक अच्छा लीडर मिला है तो उसके हाथ में अगर इक़्तिदार है, हुकूमत की बागडोर है, तो क्या ऐसी बात है कि वही बैठा रहे? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये इलेक्शन की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। इन जालिमों ने इस मुल्क को जिस नहज में पहुंचा दिया है, इक़्तिदार की लगामें अगर ऐसे अच्छे आदमी के हाथों में रहें तो कोई हर्ज नहीं है। फवाद साहब, कुछ खुदा का खौफ करे, अब से कुछ अरसे पहले तक आप इलेक्शन जल्द करवाने की बातें करते थे, देखें, और अब आप ये कह रहे हैं कि निगरान सेटअप अगर तूल भी पकड़ लेता है तो कोई हर्ज नहीं। फरीद साहब, ये उस वक्त कहा था जब इक़्तिदार बड़े जालिम लोगों के हाथों में था। इंसान को वक्त देखना चाहिए। अच्छा, 11:30 हुए मेरे ख्याल चौधरी साहब। और यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन देखनी चाहिए जी हाँ। कि क्या है इस वक्त जो सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि ऐसा बंदा, ऐसा मेहनत का आदमी और ऐसा डाउन टू अर्थ आदमी जो है, अनवारुल हक काकड़ जैसा बंदा अगर कुर्सी पे बैठा हुआ तो क्या हर्ज है यार, अगर यही हुकूमत चलती रहे। इतने प्यारे आदमी हैं और इतने माशाल्लाह डाउन टू अर्थ हैं। मैं गया हूं जब मिलने के लिए, तो मैं हैरान हो गया हूं फरीद साहब के वजीर आजम हैं और सारे अपने काम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही खाना खा रहे हैं। तो खाने के बाद उन्होंने खुद ही अपने दांत साफ किए हैं। फरीद भाई, मेरी तो उस वक्त आंखें ही खुली रह गई कि पता नहीं खारिश हुई होगी कान में। और मामूली सा काम भी वजीर आजम खुद कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मतलब ये वजारत उज़्मा के मनसब को ये ज़ेब देता है ये करना। मगर वो खुद कर रहे हैं। और तो और यार, रात को नींद आई है तो सोए भी खुद हैं। हालांकि वजीर आजम हैं, किसी भी मुलाजिम को कह सकते थे कि भाई मुझे नींद आई हुई है, जरा सो जाओ। वाह 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 फवाद साहब, एक बात जरूर कहूंगा मैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। देखें, बात ये है कि यही अक्लमंदी है। जब आसमान रंग बदल रहा हो तो आप अपने आप को भी बदलें। अब इस वक्त मैं ये समझता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, हाँ, थोड़ा सा ध्यान वो जरूर दें। मैं ये नहीं कि सिर्फ उनकी तारीफों के पुल बांधने यहाँ आया हूँ, मैं नकाइस भी उनके बताता हूँ। जी बताइए। देखें, इतलात और नशरियात की तरफ उनको जरूर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, वो तो दीदी है ना, मुर्तजा सलंगी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो हैं निगरान वज़ीर इत्तलात और कोई नशरियात। तजुर्बाकार बंदा इनको रखना चाहिए था। और अगर ऐसा बंदा भी अवेल है जिसने 2-3 पार्टियों की इत्तलात और नशरियात जो हैं वो भुगती हुई है, वो तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर आप देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी उनको कोई बंदा सियाना और अच्छा लेना चाहिए था। वो भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर उमर सैफ। वो जी होंगे बहुत अच्छे, मगर तजुर्बा नहीं है ना। मैं समझता हूं कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी इस वक्त किसी तजुर्बाकार हाथों में होती तो ये चांद की खबर इंडिया की ना आती, हमारी आती। जाने दे फवाद साहब, जिन तजुर्बेकार हाथों की आप बात कर रहे हैं, 2019 के अंदर चंद्रयान 2 जब नाकामी का शिकार हुआ, आपने मजाक उड़ाया ट्विटर के ऊपर। आज उनका मिशन कामयाब हुआ, चंद्रयान 3, तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं। देखें, जब पहुंच ही गया है तो फिर उसे दाद तो देनी चाहिए ना। इंसान किसी मुश्किल जगह पे पहुंच जाए तो वहां से जाके फोन करे कि मैं पहुंच गया हूं, तो बंदा इतना ही कहता है ना, वो वाकई पहुंच गए हो। गुड 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 गुड। उसके बाद गुड तो कहना ही पड़ता है। जी जी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बड़ी गाड़ियों वाले फरीद भाई जी, यानी छोटी गाड़ी को समझते कुछ नहीं कहते, आगे से हटाओ ये हमारी सड़क है। तो यार साफ नजर आ रहा था कि बड़ी गाड़ी में तो तुम क्यों नहीं बड़ी गाड़ी ले लेते? मैं इसलिए नहीं बड़ी गाड़ी लेता, फिर मैं किसी को तंग करूंगा। वाह वाह वाह।
अच्छा अजीजी, हस्बे हाल के बदतहजीबियों वाले सेगमेंट में आज मैं एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहूँ। जी जरूर करें। अच्छा वो ये कि ये एक आम सी बात है, हम ड्राइव करते हैं, बाहर निकलते हैं, ये अमूमन देखने में आता है कि खवातीन ड्राइवर जो खवातीन गाड़ी चला रही होती हैं, ड्राइव कर रही होती हैं, दूसरे जो मर्द ड्राइवर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये बात आती है कि वो खवातीन ड्राइवर्स को बिला वजह की वो हॉर्न देते हैं, हाँ जी, उनको एक साइड पे करने की कोशिश करते हैं, या जिसे हम आम जबान में कटिंग करना कहते हैं, या उनको इस तरह से उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएं, अपनी उस ड्राइविंग को बरकरार, अपने बैलेंस को ना रख सके। बल्कि मैं तो यहां तक भी देखता हूं हत्ता कि जो खवातीन ड्राइवर्स हैं वो उसूलों की बड़ी पाबंदी करती हैं, हमसे ज्यादा अच्छी और मोहतात ड्राइविंग वो करती हैं, बिल्कुल, लेकिन जब सड़क पर हम निकलते हैं तो ये मनाजिर आम देखने में हमें नजर आते हैं। वैसे आपकी बात ठीक है कि उसूल ज्यादा उनके अच्छे होते हैं, मगर वो बेचारी घबराई होती है अक्सर लेडीज ड्राइवर। जी हाँ, चूंकि उनको ये पता होता है कि इर्द गिर्द चंद इंतहाई बेहिस लोग जो हैं वो मुझे ही देख रहे हैं। ये अब खवातीन हमारी जो माएँ बहनें बेटियां जो ड्राइव करती हैं उनको जहन से निकालना भी चाहिए, और दूसरा जो मर्द हजरात इस तरह के हाँ जी, क्या अब मैं उनको लफ्ज़ कहूँ, उनको भी चाहिए कि अपनी माओं बहनों बेटियों की तरह जो सड़क पे बच्चियां आती हैं उनकी भी इज्जत करें। सर हमारी यंगस्टर्स बच्चियां, अब आप देखें सड़कों पर स्कूटीज लेके निकलती हैं और मतलब अच्छी बात है, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, खुद यूनिवर्सिटीज कॉलेज जाती हैं, काम पर जाती हैं, लोग उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं कि हैं ये स्कूटी चला रही है। हाँ, अब स्कूटी भी चलाना शुरू हो गई हैं बच्चियां, और इसकी बात जिया कि ठीक है कि उनको उनके साथ भी यही सलूक हो रहा होता है। हाँ जी, बहुत ही गंदी सिचुएशन है ये। मैं तो बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करूंगा, मैं अपने आप को भी इसमें रखता हूं कि हम लोग दूसरों में नुक्स निकालने के आदी हो गए हुए हैं, गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं, आने वाली जाने वाली मौजूदा हर हुकूमत के हम गालियां देनी शुरू हो गए हुए हैं। हाँ जी, अपनी हमारी तबीयत बाखुदा शर्मनाक है, शर्मनाक। अजीजी, एक खुद एहतसाबी जिसको कहते हैं ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि हम अपना एहतसाब खुद नहीं करते, हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम ये नहीं महसूस करते कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी माफी तलाफी नहीं है, और हम तनकीद करेंगे कि हुकूमत ने ये काम किया। हाँ जी, हाँ जी, ये ट्रैफिक की बात हो रही है तो पार्किंग में हम देखते हैं जहाँ पे लाइनें लगी हुई है ना, पेंट के साथ, वाइट पेंट के साथ लाइनें लगाई हुई हैं कि गाड़ी इधर इधर खड़ी है, कभी नहीं उधर आपको गाड़ियां ठीक लगी हुई नजर आएंगी। हाँ जी, लाजमन लाइन के ऊपर खड़ी कर देंगे या इस तरह खड़ी करेंगे कि अगर दो गाड़ियों की जगह है तो एको बंदा ऐसे खड़ी कर जाएगा कि दूसरी खड़ी नहीं हो सकती जी। अक्सर लोग तो सर अफरा तफरी में खड़ी हुई गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाकर ये सोच के चले जाते हैं मैं 2 मिनट के बाद आके हटा लूंगा, लगता है उससे आधा घंटा है। बंदा ये सोच ले अगर 2 मिनट में या आधे घंटे में जिसकी गाड़ी खड़ी है उसको कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो गाड़ी कैसे निकालेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारी ऐसी बेवकूफियां हैं हमारे ट्रैफिक में अभी तक जिसको हम बड़े आराम से और तहम्मुल मिजाजी से निकाल सकते हैं, मगर हम जिद में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अजीजी, अल्लाह ना करे कहीं मतलब गाड़ी लग जाए, टच हो जाए, तो गाड़ी खड़ी करके बहस शुरू कर देते हैं, दरमियान में गाड़ी खड़ी होती है सड़क में, और एक दूसरे को साबित कर रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है, वो कहता है तुम्हारी गलती है, वो कहता है तुम्हारी गलती है। अच्छा, यहीं से मुआशरा ठीक होता है। हाँ, अगर ये आदत छोड़ देना कि तुम्हारी गलती है तो मुआशरा ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। इसी का नाम अच्छा मुआशरा है। आप बाहर के ममालिक में देखें कि भाई जिद नहीं करते लोग, को गलती किसी की हो कि वो एक लफ्ज बोल के चला जाएगा, कुछ ऐसा कह जाएगा कि ख्याल कर भाई। हाँ जी, हम लोग तो बाकायदा छिंज डाल लेते हैं, हम वहीं खड़े होके उन्हीं पांव के ऊपर अपने आप को अक्लमंद अल्लामा साबित करने की कोशिश करते हैं और इंतहाई मुहज्जब शहरी बनने की कोशिश करते हैं, और दूसरे को ये कहना चाह रहे होते हैं कि तुम बहुत जाहिल हो, तुम बहुत बदतहजीब हो। हालांकि ये कहना ही ज्यादा बड़ी बदतहजीबी है। बिल्कुल सही। हमने जब भी ये बदतहजीबियों का जिक्र किया है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये हमने सिर्फ इसलिए शुरू किया कि हम अपनी भी याद दहानी के लिए इसमें चीजें पॉइंट आउट करें ताकि हमें एहसास हो, याद आए। हाँ जी, हमारे समेत
हम किसी दूसरे को नहीं बेअसूला कहते और सिर्फ अपने आप को अक्लमंद नहीं कहते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तबीयत ही नहीं होनी चाहिए। अजीजी गालम गलोच भी ऐसी कि शर्म आ जाए। और मैं फिर एक बात समझता हूँ कि अगर एक ऐसी चीज हो भी गई है, किसी एक की गाड़ी दूसरे के साथ हिट हो गई, टच हो गई है जी। वो दरमियान में रोड पे लड़ने से मसले का हल नहीं होगा भाई। बातचीत आराम से करो, तय करो, हाँ, साइड पे होके करो। हाँ जी। और हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। यार गालम सारे गलोच से नहीं। सारे मुल्क के अंदर, पहले मैं सोचा करता था कि शायद इधर पंजाब में, लाहौर में बड़ी गाली दी जाती है। मैं कराची गया उधर एक सीरियल करने, तो मुझे महसूस हुआ भाई उर्दू में तो बड़ी तेज गालियां देते हैं। बल्कि मैं एक लड़ाई में देख बैठा, सुन बैठा कि गालियां इस रफ्तार से, मैंने ट्रांसलेशन समझनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई कहीं उर्दू में भी लड़ाई हो सकती है। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। हाँ, आप किसी भी मतलब ये सूबे शूबे क्या, शहर क्या बताने हैं, कहीं भी चले जाएं लोग तप गए हुए हैं। बिल्कुल सही। तप गए हुए हैं लोग। जहाँ पे बड़ा खूबसूरत माहौल होता था, वहाँ भी अब हम एक दूसरे के गिरेबान को आ रहे हैं। कुछ लोग तो बड़ी गाड़ियों वाले, फरीद भाई जी, यानी छोटी गाड़ी को समझते कुछ नहीं कहते, आगे से हटाओ ये हमारी सड़क है। तो यार साफ नजर आ रहा था कि बड़ी गाड़ी नहीं में तो तुम क्यों नहीं बड़ी गाड़ी ले लेते? मैं इसलिए नहीं बड़ी गाड़ी लेता, फिर मैं किसी को तंग करूंगा। अजीजी भाई एक बड़ी खतरनाक बात तहजीबी करते हैं, बिल्कुल चौक में जाके हमें याद आता है कि हमने इधर नहीं इधर जाना है, फिर हम इधर वाली सारी सड़क छोड़ के सबके ऊपर से क्रॉस करके आते हैं, तो सबको रुकना पड़ता है। हाँ जी। ये मंदिर मैंने आज ही देखा है। एक बंदे को अंडरपास के पास जाके याद आया कि मैंने तो अंडरपास में जाना था, तो उसने इधर से ऐसे अंडरपास में घुसने के लिए मोटरसाइकिल कर लिया। मैंने रुक के उसे कहा कि हम अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं और जिन मुल्कों को अच्छा कहते हैं ना, वहां ऐसे नहीं होता। मतलब हम ये कहना शुरू हुए हैं, क्या कौमें हैं, क्या मुल्क हैं, क्या ये कहीं उधर का हमें मिल जाए ना PR, ओए होए ओ यार इनू ही ठीक कर लवो भाई, अपने आप ਨੂੰ अपने अंदर झांक के तो इन्हीं ठीक कर लो। हाँ जी। अब ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमने पिछले एक सेगमेंट में जिक्र भी किया है कि इनसे तो मोटरसाइकिल छीन लेनी चाहिए, इनको स्कूटियां देनी चाहिए। हाँ। हुक्मरानों को चाहिए कि फौरी तौर पे पाबंदी लगा दे। इतनी खतरनाक हो चुकी है हालत कि वो शेख नासिर हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त साफी, वो इसी काम पे बड़ा करते रहते हैं मेहनत। ये एक्सीडेंट जो होते हैं, रोड एक्सीडेंट और जी, ट्रैफिक जी। पे, वो बताते हैं कि रोजाना 13 लाशें घर जाती हैं। रोजाना एक्सीडेंट में 13 लाशें घर जाती। तो स्कूटी का हमने उसमें भी जिक्र किया था, बल्कि मुझे रिस्पांस आया, किसी ने मुझे मैसेज किया कि हम स्कूटी बना के दे रहे हैं पाकिस्तान में, और इसको ज़रूर प्रमोशन मिलनी चाहिए, इसे प्रमोट करें कि वाकई स्कूटी जो है वो इसकी लिमिट जो स्पीड की है वो बड़ी महदूद होती है, हाँ जी। और वो काबिल कंट्रोल होती है। सही। तो वाकई इसको बदल देना चाहिए। ये जो स्कूटर और तेज घी और वन व्हीलिंग, ये वो हर चीज खत्म हो जाएगी। हाँ जी। और जो गरीब कहता है कि जो गड्डी नहीं ले सकता वो फिर क्या करे, उसका भी मसला हल रहेगा। उसको कहें जी स्कूटी लें जनाब और जाएं अपने। और स्कूटी जो जिसने मैसेज किया उसने ये बताया कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटी बना रहे हैं। अच्छा। अजीजी ऐसा ही प्रोजेक्ट एक इस्लामाबाद में भी शुरू किया गया था, जहाँ पे ये इसी तरह की ई-बाइक्स के तौर के ऊपर उनको, जिनकी स्पीड भी कम है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको इस्तेमाल भी किया था। वहाँ पे प्रोजेक्ट चल भी रहा है। जी शुरू हो चुके हैं ऐसे प्रोजेक्ट, मगर उनको प्रमोट करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे उनको अपने हाथों में लेके प्रमोट करें। जी बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि बुजुर्ग रगों में बहता खून है, जो बुजुर्गों से लड़ता है वो खुद अपना खून गिराता है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।